So we'll go ahead with the next case. हमने कल 4 केसेस देखे थे. We had 4 different situation. हमारे पास 2 सिचुएशन थे जिसमें you had a block kept on horizontal table. There was friction between table and the block. पहले केस में we found out what is the minimum pulling force required. Second case में minimum pushing force required. Third case में you had an object on an inclined plane. Minimum pulling force required to move the body up the plane, then move the body down the plane. अब एक केस है minimum force to avoid sliding of a body down an inclined plane. Minimum force, and this is the last case we will discuss. Then we'll go ahead with next topic. Minimum force required to avoid you have a block, so minimum force required to avoid the block from sliding down the plane, तो आपको पता होना चाहिए, by now you should know that हमारे पास एक horizontal plane है और if you remember इस horizontal plane पे एक ब्लॉक है और आप horizontal plane को ऊपर उठा रहे हो, you are taking it up. So as you are taking this up and up and up, there will be an angle called as angle of repose, which is equal to angle of friction, at which the body starts sliding down, right? So now the thing is, हमारे पास angle of repose तक आ गए हम लोग. angle of repose से अगर ऊपर जाओगे, if you increase the angle further, then this body starts sliding down. ये body नीचे आने लगेगा, right? So remember one thing. सबसे पहला काम ये करना, understand what is happening. अब first thing that you need to do is, ये body कहाँ आ रहा है? नीचे. तो पहले ये देख लो कि कौन सा force responsible होगा इसको नीचे लाने के लिए. And of course, because मैं बोल रहा हूँ कि the body starts sliding down, मतलब angle of inclination in this case is angle of repose, but angle of repose is equal to angle of friction. तो ये जो angle होगा ये होगा theta. Good. Then what will happen is, if you want notations, it's okay. I mean, you can of course use notations. अभी मैंने book में यहाँ पे lambda ही लिख के रखा है notes में. You can just take this whatever you want. आपको चाहिए तो आप यहाँ पे lambda लिखो, आपको चाहिए तो आप यहाँ पे theta लिखो. But in this case, definitely it is equal to theta. Definitely, for sure. अब अगर आपको याद होगा components, पहले components देख लेंगे, बाद में हम फ्रिक्शन की बात करेंगे. ये है weight W, ये लैम्बडा, तो ये भी लैम्बडा, ये आ जाएगा W cos लैम्बडा, और the force which is responsible for driving the object down is W. Exactly. Very good. Right? तो ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है? नीचे की तरफ. तो फ्रिक्शन कहाँ जाएगा? That is the first thing that you need to decide. There is friction up here. तो फ्रिक्शन यहाँ पे होगा. Right? ये है नॉर्मल रिएक्शन. अब आपको करना क्या है? आपको करना ये है मिनिमम फोर्स. अगर ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, होता है ना, एक ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, फिर आप क्या करोगे? उसको रोकोगे, मतलब यू विल पुश इट अप. तो यहाँ पे यू आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बॉडी फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन. तो मान लो हमने इसको रोकने के लिए फोर्स लगाया, तो विल अप्लाई अ फोर्स समवेयर ओवर हियर, लेट अस से. तो यू कैन पुश, you can apply a force which will stop the body from sliding down. Okay, so notations I am strictly following from your modules, so I am not changing notations anyways. तो यहाँ तक क्लियर. सिचुएशन क्या था? अब कंफ्यूजन कहाँ होता है? हमने पहले ऐसा एक केस लिया था जिसमें आप बॉडी को ऊपर पुल कर रहे थे. मिनिमम पुलिंग फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी अप. जब पुलिंग फोर्स है, बॉडी कहाँ लेके आना है? अप. तो फ्रिक्शन नीचे आएगा. तो यहाँ पे आपने दिखाया था W sin लैम्बडा प्लस फ्रिक्शन. पर इन दिस केस बॉडी स्लाइड हो रहा है नीचे, उसको नहीं होने देना है. बॉडी नीचे स्लाइड हो रहा है तो फ्रिक्शन ऊपर होगा. नहीं होने देना है तो आप उसको रोकोगे, मतलब आप ऊपर एक फोर्स लगाओगे. राइट? डेफिनेटली यू कैन ऑल्सो अप्लाई फोर्स
सीधा ऐसा फोर्स भी लगा सकते हो, बट एक बेटर वे टू टेक जनरल केस। तो मैं यहाँ पे जानबूझ के इंटेंशनली आई एम कीपिंग सम एंगल, राइट। अगर मैंने डायरेक्टली ऐसा फोर्स लगा दिया तो मैं बोलूंगा अल्फा इक्वल टू 0, तो सिंप्लीफाई हो जाएगा अपने आप। गुड। नाउ इन दिस केस यू आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट इज पी। तो आप इससे कंपोनेंट्स, पी के दो कंपोनेंट, कौन कौन से दो कंपोनेंट पी की? पी कॉस और पी साइन। तो यहाँ जाएगा आपका पी कॉस और यहाँ जाएगा पी साइन। फिर वापस से पूरा का पूरा वही स्टोरी। तो यू विल से दैट ऊपर दो फोर्सेस, नीचे एक, तो यू विल से कि W साइन लैम्बडा इज बैलेंसिंग P cos अल्फा प्लस F। तो यहां से आपको F मिल जाएगा W साइन लैम्बडा माइनस P cos अल्फा, इक्वेशन नंबर 1। और नॉर्मल रिएक्शन और P साइन अल्फा दे आर बैलेंसिंग W cos लैम्बडा, तो यू विल से नॉर्मल रिएक्शन प्लस P साइन अल्फा इक्वल टू W cos lambda. Therefore, normal reaction R equal to W cos lambda minus P sin alpha. Equation number 2. But as you know, force equal to mu times of normal reaction, frictional force which is W sin lambda. अभी तो लिखा है यहाँ पे minus P cos alpha equal to mu मतलब sin theta by cos theta. Good. और R इज नॉर्मल रिएक्शन, और R नॉर्मल रिएक्शन जो है अभी अभी हमने डिराइव किया ऊपर, इट इज W cos लैम्बडा माइनस P sin अल्फा। तो दिस इज इक्वल टू हियर W cos लैम्बडा माइनस P sin अल्फा। तो वापस cos थीटा को शिफ्ट कर दो, तो cos थीटा को शिफ्ट करोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा W cos थीटा sin लैम्बडा माइनस P cos थीटा cos अल्फा इक्वल टू W sin थीटा cos लैम्बडा माइनस sin थीटा sin अल्फा। दिस इज व्हाट यू विल हैव। वापस से जिसमें P है उसको एक साइड पे ले जाओ, जिसमें W है उसको एक साइड पे ले जाओ और सिंप्लीफाई करो। तो व्हाट यू विल डू इज हियर you can just shift इसको W sin theta cos lambda को लेफ्ट हैंड साइड पे, तो you will have W cos theta sin lambda और ये शिफ्ट होगा तो माइनस W sin theta cos lambda इक्वल टू, ये यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा, तो you will have P cos theta cos lambda minus P sin theta sin lambda. So therefore you will have here W कॉमन निकल गया, cos theta sin lambda minus sin theta cos lambda। मतलब ठीक है, आपको ऐसा लिखना है तो वैसा लिखो, क्या फर्क पड़ता है। You can just take this here sin A cos B plus cos A sin B। So sin of A minus B lambda minus theta equal to P cos of theta plus lambda। तो cos of lambda plus theta, cos of lambda plus theta, राइट है ना, बीच में माइनस तो वहां पे प्लस आएगा। तो therefore P will be equal to W sin of lambda minus theta upon cos of lambda plus theta। तो ये आ गया आपका मिनिमम फोर्स required to avoid sliding of an object down the inclined plane। So this is the minimum force required, right? Simple. When we will solve examples, you will see कि इतना कुछ करना ही नहीं है। क्यों करा रहा हूं फिर? Because you need to know components। आपको हर एक केस में बताना चाहिए कि फ्रिक्शन कहाँ पे है, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। फ्रिक्शन नीचे ले लेते हैं, फ्रिक्शन नीचे लिया मतलब मोशन अप है, नहीं चलेगा। गुड। देन नेक्स्ट टॉपिक। अब एज आई टोल्ड यू कि जब हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन स्टडी कर रहे थे, ये भी न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है, ये इंक्लूडिंग फ्रिक्शन है, वो एक्सक्लूडिंग फ्रिक्शन था। तो दैट टाइम आई टोल्ड यू कि जैसे वहां पे हमने अलग अलग केसेस में एक्सेलरेशन फाइंड किया था ना, फाइंड एक्सेलरेशन।
acceleration of a block sliding down an inclined plane, g sin theta, right? I told you कि same thing we will do with friction. सिर्फ यहाँ पे अब additional है friction. तो acceleration of a block against friction is the next topic. Acceleration of block against friction. तो यहाँ पे भी अभी 3 केसेस लेंगे हम लोग. केस नंबर 1, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है which is kept on, let's say, horizontal surface. So acceleration on horizontal surface. So in this case, what you have is आपके पास एक horizontal surface है and you have a block. You have a block, something like this. एक block है आपके पास. तो अब इस केस में you want to find out what is acceleration. तो what you can do is, तो सबसे पहले acceleration कब होगा? जब बॉडी मूव होगा. बॉडी मूव कब होगा? जब एक ड्राइविंग फोर्स होगा. यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स को मैं पहले ही बता दिया कि पुल या पुश बोलेंगे. तो यहाँ पे आ गया आपका पुल. तो यू आर पुलिंग द बॉडी. तो बॉडी यहाँ पे जा रहा है, राइट? इट इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. गुड, क्लियर? और अगर बॉडी यहाँ जा रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ होगा? अपोजिट डायरेक्शन में. तो फ्रिक्शन विल बी हियर इन द अपोजिट डायरेक्शन, F. फ्रिक्शन इज कैपिटल F, राइट? ओवरऑल बॉडी कहाँ गया? ओवरऑल बॉडी कहाँ गया? लेफ्ट टू राइट. मतलब नेट एक्सेलरेशन इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. गुड. और कौन से फोर्सेस होंगी? नॉर्मल रिएक्शन एंड वेट. तो यू विल हैव नॉर्मल रिएक्शन विच इज अप and you will have weight which is down, or weight is mg, right? अब weight को मैं mg क्यों लिख रहा हूं? यहाँ पे क्यों नहीं लिखा? क्योंकि acceleration चाहिए. acceleration लिखना है in terms of g. That is why, because you want acceleration of the object in terms of acceleration due to gravity. Good. तो in this case ये situation है आपके पास. और जैसे मैंने आपको पहले ट्रिक्स बताए थे, acceleration is net force upon total mass. तो यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी सेम है, net force upon total mass. Okay, तो acceleration here will be net force F net upon total mass. Mass तो m है सिर्फ, only one object. Net force is driving force minus frictional force. और एक चीज याद रखना, तो आप क्या फाइंड कर रहे हो? acceleration. मतलब you are 100% sure the body is moving. If the body is moving, which force of friction? Kinetic. तो यहाँ पे सिर्फ हम बोल देंगे Fk, where K stands for kinetic friction. तो ये थोड़े थोड़े चेंजेस होते जाएंगे अब, क्योंकि अगर बॉडी मूव नहीं होता तो फिर स्टैटिक या स्टैटिक, अगर बॉडी जस्ट मूव हो तो लिमिटिंग. बट यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड करो, मतलब फॉर श्योर बॉडी इज मूविंग. इफ द बॉडी इज नॉट मूविंग, हाउ कैन यू फाइंड आउट एक्सेलरेशन? तो ये पता होना चाहिए. Now you know that ये जो फोर्स है जो है, this is mu k times of normal reaction upon m, right? And normal reaction is mg, दिख ही रहा है. तो therefore a equal to p minus mu k mg by m. So this is formula for acceleration. Okay, अब बाकी नोट्स में मैंने यहीं तक बताया है आपको. दैट्स इट. बट यू शुड नो वन स्टेप अहेड. नॉर्मल रिएक्शन इज mg. ठीक है, फाइन, गुड. तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग ऑन अ रफ सरफेस. रफ मतलब फ्रिक्शन है. स्मूथ हुआ तो Fk नहीं होगा. Fk नहीं होगा तो ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास. ये तो पता ही है, फोर्स अपॉन मास इज एक्सेलरेशन. तो दिस इज द चेंज. मतलब फ्रिक्शन में ये -F जो है ये ज्यादा आ गया मतलब फोर्स कम हो गया, नेट फोर्स कम हो गया. फाइन. देन सिमिलरली ये हो गया पहला केस. इन केस नंबर 2, अब अगला केस में आपको बोला है यू आर सपोज टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ अ ब्लॉक डाउन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन. एक्सेलरेशन of a block
of a block down a rough inclined plane. Rough inclined plane. In this case, the block is coming down. मैं वापस बता रहा हूं एक बार, यहां पे भी मैंने बोला था द बॉडी स्लाइडिंग डाउन, मतलब एंगल ऑफ रिपोज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ पे मैं सीधा सीधा एंगल ऑफ फ्रिक्शन के टर्म में लिखना चालू करूंगा, राइट। वहां पे भी लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो इश्यूज, बट वहां पे हमने बॉडी को रोक लिया नीचे आने से, इसलिए मैंने लैम्बडा को लैम्बडा रहने दिया। गुड। नाउ हियर you have a body which is coming down. You have a body which is coming down, moving down a rough inclined plane. The body is moving down. वापस से वही story. Why will body move down? Because there is a net force. There is net force in the downward direction. मतलब वापस से components करने पड़ेंगे. So this will be over here. Weight mg. Yes, now only thing is you will write in terms of mg. This is normal reaction and the component of mg. Here you have exactly, here you have friction because the body is coming down, so friction is f, and of course friction is fk, kinetic. Normal reaction, this is weight, of course ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ये है mg तो ये है mg, और ये आएगा mg। वेरी गुड, एक्सीलेंट। और क्योंकि बॉडी नीचे आ रहा है तो एक्सेलेरेशन इज डाउनवर्ड्स। तो ये याद है आप क्या लिखते थे? आप बोलते थे नेट फोर्स इक्वल टू, अभी बॉडी नीचे आ रहा है तो ज्यादा फोर्स कहाँ पे है? नीचे है, तो नेट फोर्स क्या हो गया? mg sin थीटा माइनस एग्जैक्टली सेम। एक्सेलरेशन इक्वल टू नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। remember net force here is mg sin theta minus fk upon m। तो यहाँ पे a equal to mg sin theta fk is mu k r normal reaction upon m। यहाँ पे r equal to mg मत लिख देना, शॉर्टकट अगर मारने गए तो गए काम से। यहाँ पे r equal to mg cos theta है, तो a इक्वल टू mg साइन थीटा माइनस म्यू के mg cos थीटा बाय m कॉमन निकाल के कैंसल, तो a इक्वल टू g साइन थीटा माइनस म्यू के यस। तो मैंने क्या किया? जी कॉमन निकाल लिया, राइट। अब बुक्स में के लिखते नहीं है क्योंकि ये अज्यूम्ड होता है कि बॉडी मूव हो रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन ही होगा, तो म्यू मतलब म्यू के ही होगा, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो मैंने भी नोट्स में शायद ये म्यू के लिखा नहीं है, आई डोंट नो, मे बी यस आई हैव नॉट रिटन इट। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड एक्सेलेरेशन तभी होता है जब बॉडी मूव होता है, और जब बॉडी मूव होता है तो फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। ये डिफॉल्ट है, बाय डिफॉल्ट है, यू आर सपोज्ड टू नो दिस। अब एक लास्ट केस, एक्सेलेरेशन ऑफ अ बॉडी अप द इंक्लाइंड प्लेन। तो द बॉडी इज एक्सेलरेटिंग अप द इंक्लाइंड प्लेन। अब ऑफ कोर्स, या फिर एक काम करो, एक्सेलरेशन बोलने की जगह पे रिटार्डेशन बोलो। क्यों रिटार्डेशन? देखो ऐसा है कि आप बॉडी को एक फोर्स लगा के ऊपर लेके जा रहे हो, एक तो mg sin थीटा नीचे है, और क्योंकि बॉडी ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन भी नीचे आएगा, तो यहाँ पे बॉडी का एक्सेलरेशन नहीं होगा, रिटार्डेशन होगा, क्योंकि वेलोसिटी कम होते जाएगा। ओके, तो एक्सेलरेशन की जगह पे रिटार्डेशन, तो यू विल हैव नेक्स्ट केस दैट इज रिटार्डेशन ऑफ अ ब्लॉक और अ बॉडी। ओके, काम हो रहा है अप, राइट, अप एन इंक्लाइंड प्लेन। अब मैं ऐसा अज्यूम करूंगा, और आपको भी अज्यूम करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? ये थीटा है, ये थीटा क्यों है? क्योंकि इवन दो हम बॉडी को ऊपर पुश कर रहे हैं, इवन दो, राइट, लेकिन अगर हमने पुश करना छोड़ दिया तो बॉडी कहाँ आएगा? नीचे क्यों आएगा? क्योंकि एंगल ऑफ रिपोज जितना है या उससे ज्यादा है। तो एंगल ऑफ रिपोज मतलब एट एंगल एट विच द बॉडी स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन, मतलब वो इक्वल टू थीटा होगा ही।
ये डिफॉल्ट असम्पशन है, ओके। तो डिफॉल्ट असम्पशन है वो। देन आपके पास एक ब्लॉक है, यू हैव अ ब्लॉक, again the same block that you have a block goes here, good। components तो वापस से वही more or less वही you have like this, you have over here, you have over here, and now over here there are two, क्योंकि यहाँ पे बॉडी अब जा रहा है तो यहाँ पे पीछे फ्रिक्शन भी है, तो यहाँ पे आपके पास फ्रिक्शन भी है, काइनेटिक फ्रिक्शन भी है। और देन हियर यू हैव mg sin theta, this is of course mg, this is theta, this is mg cos of theta, तो ये आपको पता होना चाहिए। This is all you need to know, and then of course you know there is normal reaction, and body is going up, so acceleration is up, upwards, fine। So what do you see? Net force, where is acceleration? Up, बाकी दोनों नीचे, तो net force upon total mass is यहाँ पे रिटार्डेशन, बट ठीक है, ओके। एफ नेट दोनों के दोनों नीचे है, तो एफ के प्लस एम जी साइन थीटा। मैं इंटेंशनली सिर्फ एफ के को बाद में लिखता हूँ और एम जी साइन थीटा को पहले लिखता हूँ। वाई? बिकॉज देन ऑफ कोर्स आपको समझ में आ जाएगा कि अप और डाउन में क्या फर्क है। अप और डाउन में एक ही फर्क है, यहाँ प्लस है वहां पे, मतलब आखिरी में यहाँ पे आ जाएगा। That's it. This is what you need to remember. Okay, यहाँ पे g sin theta minus mu cos theta है, वहाँ पे g sin theta plus. That's all you will have to see. You will face the same. I mean, you will have to do the same thing again. तो ये आ गया आपके पास mg sin theta plus fk. Fk is mu times of normal reaction. Normal reaction तो same ही है, mg cos theta upon m। mg कॉमन निकाल लो, a इक्वल टू mg कॉमन निकाल लिया, साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा अपॉन m और m कैंसल, तो a इक्वल टू g थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा। तो बाय रूल अगर ये याद रख सकते हो तो रख लो, फ्लैट सरफेस मतलब हॉरिजॉन्टल सरफेस पे इट इज जस्ट p माइनस म्यू के mg। अब देखो मैंने क्या बताया था आपको, यू हैव टू सी, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन था, क्या आया? g साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। अगर m कैंसल नहीं करता तो mg साइन थीटा, mg कॉमन, साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। अगर ये सरफेस हॉरिजॉन्टल होता, अगर ये सरफेस इंक्लाइन नहीं होता, हॉरिजॉन्टल होता, तो थीटा कितना आएगा? 0। व्हाट इज साइन 0? 0। व्हाट इज कॉस 0? 1। ओके, तो here in this case you will be back to the same formula। देखो है क्या, पहला छोड़ दो, p को छोड़ दो टाइम फॉर द टाइम बीइंग, p को फिलहाल पेंडिंग रखो, क्योंकि यहाँ पे p was पुलिंग फोर्स। यहाँ पे कौन सा पुलिंग फोर्स? हमने बोला है पुलिंग फोर्स नहीं, राइट? यहाँ पे नीचे क्यों आ रहा था? बिकॉज देयर इज अ फोर्स, और क्योंकि यहाँ पे जो एंगल है ये एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है, और एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा होने की वजह से ये mg sin थीटा उसको नीचे ला रहा था, एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाया हमने, लगाते तो वो भी लिखते, राइट? तो दैट द ओनली चेंज कि यहाँ पे जो थीटा है दैट बिकम्स 0। कौन से केस में? हॉरिजॉन्टल सरफेस के केस में। सो नाउ इट इज टाइम फॉर अस टू डू सम न्यूमेरिकल्स। तो जो बाकी का थ्योरी है वो बाकी का थ्योरी बाद में करके फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे। वी विल स्टार्ट विद सम न्यूमेरिकल्स नाउ। तो अ बॉडी ऑफ मास 10 kilogram is lying on a horizontal, on a rough plane, sorry not horizontal, on a rough plane inclined at an angle of 30 degree to the horizontal. Good. The coefficient of friction is 0.5. The minimum force required to pull the body up the plane. Minimum force required to pull the body up the plane. As I told you, मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूला याद रखना it's not so simple, okay? But we did all this exercise just for the sake कि आप लोगों को कंपोनेंट्स करते आए। ये 30 डिग्री है, उसके बाद एक बॉडी है जिसका मास है 10 kg,
Fine, you have a body of mass 10 kg. So this is what you have, more or less. Fine. आगे क्या बोला है? A body of mass 10 kg is lying on a rough plane, inclined at 30 degree to the horizontal. Fine. The coefficient of friction is 0.5. The minimum force required to pull the body up the plane. अब इसमें और एक चीज ऐसी है कि आपको बोला है क्या कि फोर्स कितने एंगल पे एक्ट हो रहा है? नहीं बोला, नहीं बोला तो फिर फोर्स आप कैसा लोगे? फोर्स यू विल टेक समथिंग लाइक दिस, तो डायरेक्टली पैरेलल टू द प्लेन P, क्योंकि बहुत पता ही नहीं ना कितने एंगल पे। बोला होता दैट द फोर्स इज एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ऐसा कोई बोला है क्या? नहीं बोला है। तो फिर डायरेक्टली ऐसे केसेस में यू ऑलवेज टेक फोर्स टू बी पैरेलल। किसको पैरेलल? पैरेलल टू द प्लेन, राइट? नाउ मैं पहले आपको पूरा एक मेथड सॉल्व करके देता हूं, फिर मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं, बिकॉज दैट्स व्हाट वी वांट टू डू, ऑफ कोर्स। तो अब एज यू नो, व्हाट यू नो इज कि हाँ, आपको बोला है अप द प्लेन, मतलब फ्रिक्शन इज डाउन द प्लेन, ये फ्रिक्शन है। ऊपर से वेट mg, ये इधर, राइट? और ये नॉर्मल रिएक्शन, तो ये आ गया आपके पास mg cos ऑफ 30, क्योंकि ये 30 तो ये भी 30। ये आ गया आपके पास mg sin 30, राइट? नॉर्मल रिएक्शन, वेरी गुड, जाग रहे हो, फाइन, गुड, नॉर्मल रिएक्शन। देन यू हैव हियर mg sin 30, फाइन। तो mg sin 30 है, समझ लेना। यू हैव mg sin 30 ओवर हियर, तो ये आ गया आपके पास, इसको सरका लेते हैं, mg sin 30, गुड। What you're supposed to find out is minimum pulling force, दिख रहा है? Do you see that P equal to mg sin theta plus f कौन सा? f k। तो mg sin theta equal to ये प्लस म्यू के टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, तो mg sin theta प्लस म्यू के नॉर्मल रिएक्शन इज mg cos theta, good, mg कॉमन, तो दिस इज इक्वल टू mg कॉमन sin theta प्लस म्यू के cos theta। अब आपको पता है mg sin 30 इज हाफ, और म्यू के कितना है? 0.5, और cos 30 इज √3/2। मेरा एक्सपेक्टेशन आपसे ये है, क्योंकि आप ट्रिग्नोमेट्री सिंस टाइम इंफिनिटी तब से करते आ रहे हो, है ना? इनफाइनाइट टाइम से, मतलब स्कूल लेवल से, राइट? तो स्कूल लेवल से आप करते आ रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि √3/2 होता है 0.8606, होता है ना 0.8606, √3/2, 1/√2 is 0.707, √3/2 is 0.8606। m कितना था? 10 था। g 10 ले लेंगे, और लेके तो देखो, बाद में देखते हैं क्या आएगा, क्योंकि देखो आंसर तो आसपास में है ही नहीं, 91, 914, 91.4, 9.14, और हाँ, तो कोई टेंशन नहीं है, राइट? g की वैल्यू 10 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। sin 30 इज हाफ, म्यू के इज 0.5, और ये था 0. कितना? 8606, तो मैं 86 ही मान लेता हूं। अब देखो यहाँ पे और एक चीज आती है, ये जो म्यू के को आपने लिखा है 0.5, अगर इसको आप 1/2 लिख देते तो कितना आसान हो गया? ये आ गया 100, और ये हाफ आ गया कॉमन, और उसके ऊपर ये हो गया 1 प्लस 0.86, मतलब 1.86, और 1.86 का हाफ 0.93 into 100 is approximately 91.4 आ गया ना आपका, अप्रोक्सीमेट है, क्योंकि अभी 91.4 के आसपास तो कुछ है नहीं। ये है लॉन्ग मेथड। वेट अ मिनट, दिस इज नॉट व्हाई वी हैव स्पेंट 3 lectures on theory. Look, where is body going? Up. What is acceleration when the body goes up? अभी देखो, अब मैजिक, F equal to ma
but body is going up, तो g sin theta plus mu k cos theta. No, look, we got the same. mg sin theta plus mu k cos theta. कोई कंपोनेंट नहीं किया, अब जा रहा है ना, बस that's it. Put a plus, put values, done. So let us understand the difference between without friction and with friction. तो विदाउट फ्रिक्शन में एक छोटा सा चेंज होता है. विदाउट फ्रिक्शन में फ्रिक्शन का पार्ट गायब हो जाता है. तो जितना फोर्स नीचे है कम से कम उतना ऊपर लगेगा, तब जाके बॉडी ऊपर मूव होगा. तो वहां पे आपको याद होगा विदाउट फ्रिक्शन में a was g sin थीटा. वेरी गुड. तो अब रिमेंबर ये जो फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का विद फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो सेकंड पार्ट को उड़ा दो, हो गया जी साइन थीटा. तो हमने जो एनएलएम न्यूटन लॉस ऑफ मोशन किया था विदाउट फ्रिक्शन, उसमें और विद फ्रिक्शन में एक ही चेंज है, ये एक्स्ट्रा टर्म है. और ये आप सीखोगे, मैं थ्योरी में भी बताऊंगा पर अभी बता ही देता हूं. तो व्हाट हैपेंस इज, अभी ये जो म्यू के जी cos थीटा टर्म है ना, दिस इज बेसिकली इट कम्स फ्रॉम वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन. क्योंकि फ्रिक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा. तो आई विल टेल यू इन थियरी अगेन लेटर, बट फिलहाल ये याद रखो. नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन अच्छे से समझना है. इट्स अ गुड क्वेश्चन. अ बॉडी ऑफ वेट 64 न्यूटन, वेट ऑफ द बॉडी इज 64 न्यूटन, वेट मतलब mg, right, is pushed with just enough force to start it moving across horizontal floor. Yes, but wait a minute. Yes, you're right, it is limiting friction. Good. तो आगे पहले समझ लो, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट मतलब mg मतलब नॉर्मल रिएक्शन. दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट. तो यू हैव अ बॉडी which was at rest of weight 64 Newton, then is pushed with just enough force to start it moving across horizontal floor, and the same force continues to act afterward. मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन जितना फोर्स होगा उतना ही फोर्स, नॉट काइनेटिक फ्रिक्शन. अंडरस्टैंड द डिफरेंस. पहले आपने फोर्स लगाया, बॉडी वाज नॉट मूविंग, फिर फोर्स लगाया, बॉडी वाज नॉट मूविंग, देन you apply a force, the body just starts moving. Limiting friction, right? तो जो भी फोर्स हमने अप्लाई किया वो फोर्स इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन है. जो हमने अप्लाई किया दैट इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन. लेकिन काइनेटिक में तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाता है ना लिमिटिंग से. अप्लाइड फोर्स सेम है लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स कम हो गया. ओके, वेट अ मिनट, विल गो हियर. देखो ये ग्राफ ये बताता है कि आप फोर्स, अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जा रहे हो. एक स्टेज आया जब बॉडी स्टार्ट्स मूविंग, करेक्ट, राइट. तो जो भी अप्लाइड फोर्स था इट बिकम्स इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, राइट. उसके बाद बॉडी पे तो अप्लाइड फोर्स सेम ही है, अप्लाइड फोर्स हमने चेंज नहीं किया. वी हैव नॉट चेंज अप्लाइड फोर्स. लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाएगा क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन का फोर्स लिमिटिंग से कम होता है. इसी हियर, तो फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन रिड्यूसेस, नॉट द अप्लाइड फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स कम हो गया लेकिन अप्लाई तो जितना किया उतना ही किया ना, कहाँ कम किया. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस. यहाँ पे कंफ्यूजन कहाँ होता है, प्राइमरी कंफ्यूजन आपको यहाँ होगा कि वो जो हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन का फोर्स लगाया दैट इज इक्वल टू काइनेटिक फ्रिक्शन. नो, अप्लाइड फोर्स इज डिफरेंट, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डिफरेंट, काइनेटिक फ्रिक्शन इज डिफरेंट. तो पहले तो ये समझ लो कि क्वेश्चन में बोलना क्या चाह रहे हैं. आपको ये बता रहे हैं कि ये जो बॉडी है इसका वेट कितना, वेट 64, वेट मतलब mg, मतलब आपको mg बता दिया. सबसे पहले क्या बता दिया, mg कितना 64, ये समझ लो. आगे बोला है बॉडी इज पुश्ड विथ जस्ट इनफ फोर्स टू स्टार्ट इट मूविंग, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन व्हिच इज म्यू टाइम्स ऑफ
mg, mu into mg, mu is normal reaction is mg. आगे 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 देखो, आगे क्या बोला है यहाँ पे, दे सेम फोर्स, मतलब बॉडी ने फ्रिक्शन ओवरकम कर लिया, फ्रिक्शन तो कम हो गया क्योंकि फ्रिक्शन कम हो जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता है काइनेटिक, लेकिन जो अप्लाइड फोर्स था वो कम नहीं हुआ, वो वही है. देन इफ द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब लिमिटिंग कितना 0.6, राइट, एंड डायनामिक फ्रिक्शन आर 0.4, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज एक्सेलरेशन की कब बात होगी जब बॉडी मूविंग है, मतलब ड्राइविंग फोर्स P माइनस फ्रिक्शनल फोर्स, कौन सा फ्रिक्शन, काइनेटिक, अपॉन टोटल मास. तो ये याद रखना, यहाँ तक पहले याद रखो, फिर हम आते हैं इस पे वापस एक बार. तो नाउ व्हाट यू विल डू इज, सबसे पहले ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन का फोर्स है वो फाइंड कर लो. म्यूएल की वैल्यू कितनी 0.6, और ये कितना है, व्हाट इज 64 into 0.6, कितना 38.4, ये आ गया आपका न्यूटन में लिमिटिंग फ्रिक्शन. व्हाट विल यू गेट फ्रॉम दिस, अभी बुक टू बुक वेरी करता है, तरीका चेंज होता है, द थिंग्स गो डिफरेंटली, नहीं तो ऐसा भी कर सकते हो, दूसरा भी अप्रोच है, दूसरा अप्रोच ऐसा है. फाइन, ये तो आपने कर लिया, गुड. यू कैन राइट दिस एज G इक्वल टू FL अपॉन म्यू एल एम, राइट. तो अब म्यू एल, व्हाट इज म्यू एल 0.6, और व्हाट इज FL 64. बोलोगे कि लिमिटिंग फ्रिक्शन इक्वल टू 64 क्यों लिया हमने 64, व्हाई, जस्ट मूव, वेरी गुड. तो यहाँ पे क्या आएगा, ये क्या लिखूं, M या फिर M, और यहाँ पे ये G. गुड, एक ही बात है, मैं दोनों तरीके बता दूंगा आपको सॉल्व करने के लिए. बुक टू बुक सॉल्यूशन विल वेरी. आपको क्या चाहिए, एक्सेलरेशन इज नेट फोर्स, कौन सा फोर्स, नेट फोर्स अपॉन मास. नेट फोर्स मतलब अप्लाइड फोर्स माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन. अब प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम बता देता हूँ आपको मैं. प्रॉब्लम क्या था, ये तो कोई इश्यू ही नहीं है, ये कितना है 64 है ना, हाँ 64 है, माइनस ये कितना है म्यू के, नहीं ये म्यू के mg है, ओके, यहाँ पे ये ध्यान रखना, और अपॉन क्या है m है. तो 64 माइनस म्यू के कितना 0.4, राइट. m इज 64 अपॉन 0.6 g, तो 64 अपॉन 0.6 g. जस्ट अ मिनट, इसको हटा ही देते हैं. I'll just write it down over here. Right. Wait. I know there are few things which lead to confusion, but then you should know all the methods of solving. तो ठीक है, ये भी पता होना चाहिए. mg, right? mg. What is m? 0.64 upon 0.06 g, और यहाँ पे क्या आएगा, अरे g, तो g और g आंसर, right? What is this? Wait a minute, I know, just a minute. Follow this step. अब मुझे बताओ इसके बाद क्या आएगा. What is 64 by 0.6 into 4? What is this going to be equal? Of course m मुझे पता है कि m यहाँ से लिख सकते हो, ठीक है, लिख दो, हो गया. आगे बताओ. What is 64? अरे ये 2/3 है, 2/3 into 64. Okay, fine. I will do it for you. 64 minus 2/3, 64 बराबर. नीचे क्या है 64 अपॉन क्या है 0.6 क्या है g. गुड, इक्वल टू 64 कॉमन 1 minus 2/3 अपॉन ये g डिनोमिनेटर जाएगा ऊपर, और ये 64, ये और ये कैंसल, और नीचे का 0.6 को मैं भेजूंगा ऊपर, तो ये आ जाएगा 1 minus 2/3 1/3, ये 1/3 और 0.6 गया ऊपर, राइट. तो g, व्हाट इज दिस नाउ 0.2g, ऑप्शन नंबर D. नाउ
आई नो वेयर योर कंफ्यूजन लाइज। देखो प्रॉब्लम पहले क्वेश्चन समझो, बाकी सब होता रहेगा। A body of weight 64 Newton is pushed with just enough force to start its motion. Just enough. Just enough. मतलब force of limiting friction वो just enough है, right? Is equal to mu L mg. क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर? इसके बाद हमने क्या किया? इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है, अभी ये देखो जस्ट इनफ, दिस इज समथिंग यू नीड टू नो कि ये FL की वैल्यू, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आएगी? 64। क्यों आएगी 64? क्यों आएगी 64? जस्ट मूविंग है, राइट? तो फ्रॉम हियर व्हाट यू कैन डू इज यू कैन फाइंड आउट m, और मैं m क्यों फाइंड कर रहा हूँ वो भी समझ लो। तो FL अपॉन म्यू एल जी, राइट? but FL is limiting friction which is equal to 64, और यही फोर्स बाद में कंटिन्यू रहेगा। बोला है क्या? सेम फोर्स कंटिन्यूज आफ्टरवर्ड्स। तो जितना लिमिटिंग फ्रिक्शन था उतना ही फोर्स बाद में भी लगता रहेगा, लेकिन वो फोर्स क्या कहलाएगा? ड्राइविंग फोर्स। कौन सा फोर्स? पुल फोर्स, P। बराबर? यहां तक क्लियर? जितना लिमिटिंग फ्रिक्शनल का फोर्स था उतना फोर्स कंटिन्यूअसली ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है, बट नो वेट अ मिनट, हम तो mg को 64 लिख सकते थे, क्या फायदा लिख के? क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? एक्सेशन इन टर्म्स ऑफ क्या चाहिए? जी। दिख रहा है? जी जी जी। कहीं भी जी की डाली है क्या? नहीं। तो मास को हम पहले जी के टर्म्स में लाए, दैट इज व्हाई यू आर ब्रिंगिंग इट इन टर्म्स ऑफ जी। अब यू नो व्हाट इज दिस, दिस इज 64, यू नो दिस इज 0.6 जी। अब मैंने आपको पहले बता दिया, एक्सिस इज नेट फोर्स। नेट फोर्स मतलब ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग, पर जब बॉडी मूव होगा तो अपोजिंग काइनेटिक होगा, काइनेटिक होगा, ओके, अपॉन मास। वेरी गुड। अब यू नो कि ये तो 64 था, लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू mg होता है, ओके, करेक्ट, अपॉन m। तो A इक्वल टू 64, म्यू की तो 0.4 था, लेकिन m अभी पॉइंट किया 64 अपॉन 0.6 जी, और यहाँ पे भी g अपॉन 64 अपॉन 0.6 जी। जी गया। इसमें से आप 64 कॉमन निकाल लो, 64 कॉमन निकाल लिया, 1 माइनस 0.4 बाय 0.6 इज 2/3 अपॉन 64, और ये 0.6 जी जो है ये ऊपर आ गया, कैंसल और कैंसल, 1 माइनस 2/3 1/3.6, तो ये आ गया आपके पास 0.2 जी। हो गया सॉल्व, डन। इज इट क्लियर या वापस बताऊं? सो दैट्स इट फॉर टुडे।